گورلی اور نیلو بہت قریب تھے۔ نیلو کو اس کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا۔ گورلی نیلو سے کہتی ہے، نیلو، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کھانے کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے اور مکان مالک بھی ہم سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں کیا کروں گورلی، مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے۔ میرے سیدھے ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، چلو میرا کرایہ نکالو، تم لوگ تو بہت کنجوس ہو، میرے گھر میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہو اور میرا کرایہ 1 مہینے سے نہیں دیا۔ نیلو کہتا ہے، کالو، میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، تم نہ ہی کبھی کام ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میرے پیسے دے پاؤ گے، اسی لیے چلو میرے گھر سے باہر نکلو۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک گلاب کے گھر پر پڑتی ہے۔ گورلی کہتی ہے، مجھے تو یہ جادوئی گھر لگ رہا ہے۔ تبھی گھر میں سے آواز آتی ہے، ہاں تم نے صحیح پہچانا، یہ جادوئی گھر ہے۔ یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے اور تم دونوں اچھے ہو، اسی لیے اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اس گھر میں ساری کھانے کی چیزیں اور سونے کا انتظام ہے تاکہ تم لوگ گھر میں آرام سے رہو۔ نیلو اور گورلی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن کالو ان دونوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ چڑیا کتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہی ہے، ان لوگوں نے میرا کرایہ نہیں دیا، نہ اب میں ان کا گھر ان سے چھین لوں گا۔ تبھی گلاب کے گھر سے کالو کی اور کانٹے برسنے لگتے ہیں اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر نیلو اور گورلی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نیلو نام کا ایک چڈا گوری اور کالو کے گھر پر رہتا تھا۔ گوری اس کو بہت پریشان کرتی تھی اور اس سے سارا گھر کا کام کرواتی تھی۔ ایک بار نیلو بیمار پڑ جاتا ہے اور گوری سے کہتا ہے، گوری آنٹی، مجھے کچھ روپے دے دو، میں بہت بیمار ہوں، مجھے دوائی لینے جانا ہے۔ گوری کہتی ہے، زیادہ ڈرامہ مت کر سمجھے نیلو، یہاں پہ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، جب دیکھو تب بیمار ہی ہو جاتے ہو، تمہاری دوائی کے لیے ہی کیا کالو کماتا ہے، چلو برتن دھو جا کے۔ نیلو کہتا ہے، آنٹی میں سچ میں بہت بیمار ہوں، بس آج سے اور تھوڑے سے پیسے دے دو، آپ سے پھر نہیں مانگوں گا۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے کہہ چکی ہوں تجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، بس اب تم جا کے برتن دھو ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ نیلو کہتا ہے، آنٹی بس آخری بار پیسے دے دو، میں آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ گوری کہتی ہے، مطلب تم نہیں مانو گے، چلو اب اس گھر سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گولی نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ جب کالو گھر پر آتا ہے تو گوری سے پوچھتا ہے، ارے گوری، آج نیلو دکھائی نہیں دے رہا، کہاں گیا ہے؟ گوری کہتی ہے، آج میں نے اس کو گھر سے باہر بھگا دیا ہے، وہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں تھا، آئے دن بیمار ہو جاتا تھا، کیا تو اس کے لیے ہی پیسے کماتا ہو جو وہ سارا دوائی میں خرچہ کر دو؟ کالو کہتا ہے، نہیں نہیں، چلو اچھا ہے تم نے اسے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے مجھے کھانا دو اب۔
वहीं दूसरी ओर नीलू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब भी नीलू उदास होता था तो वो हमेशा उसी आम के पेड़ के नीचे आता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। नीलू कहता है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो सोने के लिए छत भी नहीं है और भूख से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, नीलू मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर नीलू डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आम का पेड़ कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने ही हूँ। मैं आम का पेड़ हूँ। मुझे पता है तुम उदास हो और बीमार भी लग रहे हो। चलो अब ये आम खाओ। ये कहकर आम का पेड़ एक आम गिरा देता है। नीलू उस आम को खा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने तो मुझे ठीक कर दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात में सोने के लिए घर भी ढूंढना है। आम का पेड़ कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ एक आम का घर आ जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त। फिर नीलू उसमें रहने लगता है। दूसरी ओर जब कालू और गोरी को ये पता चलता है कि नीलू के पास इतना सुंदर घर है तो उनसे रहा नहीं जाता। गौरी कहती है, मुझे नहीं पता था कालू के पास इतना सुंदर घर भी है। हमें उसे ये घर छीनना पड़ेगा। भला हम क्यों इतने खराब घर में रहें और नीलू इतने अच्छे घर में रह रहा है। कालू कहता है, ठीक है, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं, उसके घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कालू और गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं और घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उस घर से आम गोलियों की तरह उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गोरी कहती है, अरे मेरा सर फूट गया, मेरी कमर। चलो कालू भागो यहाँ से, वरना ये आम तो हमें मार ही देंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और नीलू हमेशा हमेशा उसी घर में रहने लगता है। नीलू और गोल्डी अपने घर पर थे। गोल्डी खिचड़ी बनाने में लगी हुई थी। गोल्डी नीलू से कहती है, सुनिए जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे नमक की ज़रूरत है और नमक तो ख़त्म हो गया है। अब मैं खिचड़ी कैसे बनाऊँगी? नीलू कहता है, कोई बात नहीं गोल्डी, मैं पड़ोस के कालू के घर से ले आता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है नीलू, पर जल्दी आना। ये कहकर नीलू कालू के घर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। कालू दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। नीलू कहता है, कालू भाई, तुम मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, मुझे नमक की ज़रूरत है। कालू बहुत ही चालाक और कंजूस था। कालू कहता है, नीलू भाई, तुम्हें नमक की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या बना रहे हो? नीलू कहता है, कुछ नहीं, बस खिचड़ी बना रहा हूँ, अब मुझे नमक दे दो। कालू कहता है, मेरे पास नमक तो नहीं है, लेकिन शक्कर है, तुम्हें शक्कर लेना हो तो ले जाओ। नीलू कहता है, मैं शक्कर का क्या करूँगा? कालू, अच्छा मैं जा रहा हूँ। ये कहकर नीलू चला जाता है और दूसरी जगह नमक ढूंढने लगता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नीलू कहता है, मैं तो आज नमक लेके ही घर जाऊंगा। अगर नमक लेके ना गया तो गोली गुस्सा हो जाएगी। तभी नीलू की नज़र पास में ही खरगोश पर पड़ती है जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। नीलू को उस पर तरस आ जाता है
और उसको झाड़ियों से निकाल देता है। खरगोश भी खुश होकर भाग जाता है। तभी नीलू के पास ही एक नमक का बोरा आ जाता है। नीलू कहता है, अरे ये नमक का बोरा कहाँ से आ गया? अभी तक तो नहीं था। तभी आसमान से आवाज़ आती है, नीलू, ये तुम्हारी दरिया दिली का फल है। क्योंकि तुमने उस खरगोश को बचाया है, इसीलिए तुम्हें ये तोहफा देता हूँ। नीलू खुश हो जाता है और नमक का बोरा लेकर वापस घर आ जाता है। गोल्डी देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, ये नमक का बोरा आपको कहाँ से मिल गया? नीलू उसको पूरी बात बताता है, कैसे उसने उस खरगोश को बचाया और ये नमक मिला। फिर गोल्डी कहती है, बड़े बूढ़ों सच ही कहते हैं, अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। गोल्डी और नीलू अपने छोटे से और प्यारे से घर में रहते थे। गोल्डी के 2 अंडे भी थे। वो सारा दिन अंडों पर बैठी रहती थी और नीलू उसके लिए खाना लाता था। एक दिन गोल्डी नीलू से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, अब जल्दी ही हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। नीलू कहता है, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, अब हमें अंडों की और ज़्यादा देखभाल करनी होगी, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन भी हैं जो हमारे अंडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गोल्डी कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो, मैं इन अंडों की अच्छे से देखभाल करूँगी। नीलू कहता है, मैंने सुना है हमारे गांव में एक नया कौवा आया है, वो शक्ल से ही बहुत गंदा लगता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया है उससे दूर ही रहना। गोल्डी तुम भी उससे दूर ही रहना। गोल्डी कहती है, ठीक है। फिर नीलू खाना लेने बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कालू अपने घर में आराम से चुराए हुए अंडे खा रहा होता है और कहता है, वाह वाह, कितने मज़ेदार अंडे हैं। ये चिड़ियों के अंडे का स्वाद ही अलग होता है। काश मैं दिन भर अंडे ही खाता रहता, लेकिन ये अंडे तो मैं अभी खा लूँगा, लेकिन फिर बाद में क्या खाऊँगा? मुझे और अंडों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। गौरी कहती है, मुझे भी अंडे बहुत पसंद हैं, मेरे लिए भी कुछ बचा दो और दूसरे अंडे ढूंढो। कालू कहता है, लेकिन मैं अब अंडे कहाँ ढूंढूं? गौरी कहती है, मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसने अंडे दिए हैं, जाकर उसके ही अंडे ले आओ। कालू कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर कालू भी चला जाता है। कालू गोल्डी के घर चला जाता है और गोल्डी पहले से ही तैयार कर चुकी थी। उसको पता था ये कालू उसके अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अपने अंडे पहले ही दूसरे घर में छुपा दिए थे और नकली अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, कालू भैया आपके यहाँ कैसे आना हुआ? कालू कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें बधाई देने आया था, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। गोल्डी कहती है, हाँ कालू भैया, बस कुछ दिन में ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। कालू पूछता है, नीलू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? गोल्डी कहती है, वो तो खाना लेने गए हैं, शाम तक आएंगे। कालू कहता है, गोल्डी तुम्हें शायद कोई बुला रहा है, जाके देख लो। गोल्डी कहती है, पर कालू भैया मैं तो अंडों पर बैठी हुई हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे अंडों की रखवाली कौन करेगा? कालू कहता है, मैं किस लिए हूँ, मैं उन अंडों की रखवाली करूँगा। गोल्डी प्लान के मुताबिक बाहर चली जाती है। कालू अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और सोचता है, वाह कितने गरम गरम अंडे हैं, मैं इन्हें यहीं खा लेता हूँ। अगर मैं इनको घर लेके गया तो गौरी भी खाएगी।
इतना सोचकर कालू अंडे खाने की कोशिश करता है, पर अंडे तो पत्थर के थे। उसकी वजह से कालू की चोंच टूट जाती है और कालू रोने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। एक बार की बात है, नीलू अपनी चाची और उनकी बेटी पीलू के साथ रहता था। उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। वो सारा दिन काम करता और उसकी चाची उसके सारे पैसे छीन लेती थी। एक बार नीलू कहता है, चाची मुझे कुछ पैसे चाहिए। चाची कहती है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई? कालू कहता है, चाची मुझे जूते लेना है। सारा दिन काम कर 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 मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे जूते के लिए पैसे दे दो। चाची कहती है, अरे जाओ यहाँ से, पहले ही हमारे पास कम खर्चे हैं जो तुम पैसे लेने आ गए। एक तो तुम्हारे माँ बाप वैसे ही तुम्हें मेरे सर पर बोझ की तरह डाल गए और मेरी मुसीबतें और बढ़ा दी। मैं तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं देने वाली, अब तुम जाओ यहाँ से। पीलू कहती है, अरे माँ, भाई को जूते दिला दो, वैसे भी हमारे सारा काम भाई ही करता है, सिर्फ जूते ही तो दिलाना है। चाची गुस्से में कहती है, ये पीलू, ज़्यादा नीलू की हमदर्दी मत करो और जाओ बाहर का काम करो, वरना मैं तुम दोनों को ही घर से भगा दूँगी। नीलू कहता है, चाची रहने दीजिए, पीलू को मत डांटिए। चाची को ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है, नीलू तुम हमारे घर से फ़ौरन चले जाओ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर नीलू वहाँ से चला जाता है। घर से निकलने की वजह से नीलू जंगल की ओर चला जाता है और रात होने लगती है। नीलू कहता है, अरे अब तो अंधेरा हो गया, अब यहाँ पर दूर दूर तक किसी का घर भी नहीं दिख रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी रात में मैं क्या करूँ? नीलू बहुत उदास हो जाता है और कहता है, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं यहीं सो जाता हूँ। ये कहकर नीलू वहीं सो जाता है। जब सुबह होती है और नीलू की आँख खुलती है तो देखता है कि वो एक बड़े से तरबूज के घर के अंदर है। नीलू बहुत शौक हो जाता है और कहता है, अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो जंगल में सो रहा था, फिर इस घर में कैसे आया? तभी नीलू को आवाज़ आती है, मैं तरबूज हूँ, मैं तरबूज का घर हूँ, मैं इस जंगल में रहता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अच्छे इंसानों की मदद के लिए बनाया है। मैं यहीं पर था, जब मुझे तुम सोते हुए दिखे तो मैं तुम्हें ले आया। नीलू कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद करी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता, लेकिन क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? तरबूज का घर कहता है, हाँ, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। नीलू कहता है, मैं यहाँ पे पीलू और चाची को लेके आना चाहता हूँ, क्या मैं उन दोनों को ले आऊँ? आवाज़ आती है, हाँ ले आओ। फिर नीलू चाची और पीलू को भी तरबूज के घर में ले आता है। पीलू कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। चाची कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो नीलू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नीलू कहता है, कोई बात नहीं चाची, मैं तो आप लोगों के लिए ही हूँ। एक बार कालू और गोल्डी पेड़ पर बैठे हुए थे। दोनों बातें कर रहे थे। गोल्डी कहती है, कालू, क्या तुम्हें पता है, मैं अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए मुझे घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढनी है।
کیا تمہیں کوئی پیڑ پتا ہے جہاں میں گھونسلہ بنا سکوں؟ کالو کہتا ہے ہاں، وہ سامنے والا پیڑ ہے نا، وہاں بنا لو۔ گولڈی کہتی ہے یہ پیڑ کسی اور پنچھی کا تو نہیں ہے نا، کیونکہ میں کسی اور کے پیڑ پہ گھونسلہ کیوں بناؤں؟ کالو کہتا ہے ارے گولڈی، مجھے پتہ ہے یہ کسی اور کا پیڑ نہیں ہے، تم یہیں پیڑ پر گھونسلہ بنا لو۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں یہیں بنا دوں گی۔ اتنا کہہ کر گولڈی وہاں گھونسلہ بنانے لگتی ہے، اور جب اس کا گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے تب وہاں پہ گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے اے چڑیا، میرے پیڑ پر گھونسلہ کیوں بنا رہی ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے۔ گولڈی کہتی ہے پر یہ تو کسی کا پیڑ نہیں ہے، تو تمہارا کیسے ہوا؟ گوری کہتی ہے ارے یہ میرا پیڑ ہے، میں کچھ دنوں کے لیے گھومنے گئی تھی، اتنے میں تم نے میرے پیڑ پر گھونسلہ بھی بنا لیا۔ گولڈی کہتی ہے پر کالو نے تو کہا تھا یہ کسی کا نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے اے چڑیا، اب یہاں سے بھاگتی ہے یا میں تمہارا کچومر بنا ڈالوں؟ گولڈی کہتی ہے جا رہی ہوں، کرپیا مجھے مت مارو۔ پھر چڑیا دوسرے پیڑ پر گھونسلہ بنا لیتی ہے اور اس میں انڈے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کتنے پیارے انڈے ہیں میرے، میں ان کو کسی کی نظر نہیں لگنے دوں گی، میں ان کی اچھے سے حفاظت کروں گی۔ پھر ایک دن چڑیا دانا کھانے پیڑ کے نیچے اترتی ہے تو اسے کالو مل جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے کالو، میں تو تمہیں اچھا سمجھتی تھی لیکن تم تو جھوٹے نکلے، تمہارے کہنے پر میں نے اس پیڑ پر گھونسلہ بنایا تھا لیکن وہ تو گوری کا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ گھونسلہ بنانا پڑا۔ کالو کہتا ہے ارے چڑیا، مجھے کیا پتا تھا وہ گوری کا پیڑ ہے، ورنہ میں تم سے کیوں کہتا۔ لیکن ان سب باتوں کو چھوڑو، میں نے ایک چیل کو تمہارے گھونسلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، جلدی سے جاؤ اور اپنے انڈوں کو بچاؤ۔ یہ سن کر چڑیا گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے اپنے گھونسلے پہنچ جاتی ہے۔ چڑیا جب ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے کوئی نہیں دکھتا۔ گولڈی کہتی ہے آج پھر اس کالو نے مجھے جھوٹ بولا، یہ جھوٹا کالو کبھی نہیں سدھر سکتا، اب میں اس کو کوئی بات نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اگلے دن کالو کے گھونسلے میں آگ لگ جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے ارے میرے گھر پہ آگ کیسے لگ گئی، میں تو اپنے گھونسلے کو کیسے بچاؤں؟ کالو چلانے لگتا ہے ارے کوئی میرے گھونسلے کو بچاؤ، نہیں تو میں کہاں رہوں گا۔ پھر کالو کو گولڈی کی یاد آتی ہے اور گولڈی کے پاس چلا جاتا ہے۔ کالو گولڈی سے کہتا ہے گولڈی میری بہن، میرے گھر کو بچا لو۔ گولڈی کہتی ہے ارے کالو، یہاں اتنی زور زور سے کیوں چلا رہے ہو؟ کالو کہتا ہے گولڈی بہن، میرے گھونسلے میں آگ لگ گئی ہے، پلیز میرے گھونسلے کو بجھانے میں میری مدد کرو۔ گولڈی کہتی ہے اب میں تمہاری جھوٹی باتوں میں نہیں آنے والی، تم جھوٹے ہو، تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، تمہارے وجہ سے میں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، جاؤ میرے گھونسلے سے دور ہٹو۔ یہ سن کر کالو کہتا ہے کاش میں نے گولڈی سے جھوٹ نہ بولا ہوتا تو آج یہ میری مدد کرتی اور میرا گھونسلہ بچ جاتا۔